Everyone. Jai Jinendra. Good evening, everyone. Jai Jinendra, good evening. To all our esteemed guests, speaker, and the participants for joining us today for this insightful session. Budget Decoded. What's in it for you? I am Anushree Jain, Secretary Jito Youth Wing Apex, and the event convener for this event, and it's my absolute honor to moderate this event. At Jito, we constantly strive to create opportunities for knowledge, empowerment, and growth. This session is yet another initiative to help us better understand financial stability, cash flow management, and wealth creation. Before we begin, let's invoke the blessings of Lord Mahavir with an Amokar mantra. Thank you so much, everyone. Now I'd like to invite Srimati Sarlaji Putoria, Secretary Jito Ladies Wing, to deliver the welcome address. Sarlaji, are you there? Jai Yes. Jinendra. Jai Jinendra and welcome to all of you. Friends, it is indeed a privilege for me to welcome you all today. It is very well said that alone we can do so little and together we can do so much. And coming together with Youth Wing Jito Professional Forum is indeed a gate open for progress. On behalf of Jito Ladies Wing, I welcome you all. A heartfelt thanks to the Jito Youth Wing and Jito Professional Forum for collaborating with us on this insightful session, the Union Budget. I extend a warm welcome to all the members of Jito Ladies Wing, Jito Youth Wing, and JPF, along with our esteemed Jito Apex dignitaries present here. To name a few of them present, Sri Shripalji Bachawat, Sri Mahavir Chaplot, Sri Vijay Bhandari, and Sri Prithviraj Kochari for gracing us with their presence and blessings. A special thanks to Sheetalji Dugar, our JLW chairperson, and Sonaliji Dugar, our DIC. Rajatji Hardi, the chairman, Youth Wing. Praveen Shah, director in charge, Youth Wing. Kumar Palji Chopra, JPF chairman, and Manish Jain, DIC JPF, along with their dedicated team. Today, this team has graciously stepped back of their speeches. Hats off to these remarkable leaders who truly believe in creating more leaders than followers. And above all, I welcome Sri Jagmohanji, today's speaker, who is going to enlighten us about the Union Budget Decoded. Without taking much time, let's begin this enlightening session. Wishing you all a great learning experience. Thank you. Thank you so much, Sarlaji. With this, we have with us esteemed leader of Jito Apex, Jito Ladies and Jito Youth Wing, whose vision and leadership guide us. It's a privilege to hear from them also. So I would request Sri Shripalji Bachawat, Secretary in Charge, Jito Youth Wing Apex, who always stand with with youth, motivate them. Bhaiya, please bless with us with your motivational words.
अब श्वेता प्लीज चेक, नहीं अगर है तो फिर नेक्स्ट हम लोग ले लेते स्पीकर को। महावीर सर थे। हाँ। Okay. So now I would welcome Sri Mahaveji Chaplot, Secretary in Charge, Jito Ladies Wing, who is the backbone of all the ladies, support them endlessly. I would request her to kindly motivate all the ladies and youth present here with your words. देखा Can we? श्वेता म्यूट ऑल प्लीज। जी मैम। I think Mahavir ji is not there. मेरे को लग रहा है सब अपने डिग्निटरीज आने वाले हैं, थोड़ा उनको लगा कि 10 मिनट डिले होगा इसीलिए। तो जब आएंगे तब हम उनसे उनका इवेंट शुरू कर सकते हैं। आई थिंक या पृथ्वीराज जी के, अनुश्री जी। Yes. Okay. So I have the honor of inviting Shri Prithviraj Kothari, Chairman Jito Apex. His leadership has inspired countless individuals. Uncle, we humbly request you to kindly give us the blessing so that we can start the session further. थैंक यू अनुसरी। आवाज आ रही है? Yes, sir. सभी को सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ लेडीज विंग को जो सब प्रोग्राम के ऊपर प्रोग्राम कर रही है। डीजी नारी का किया, उसके बाद में एक और प्रोग्राम किया साइबर पर किया, और ये बजट के ऊपर है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ शीतल जी को, सोनाली दुग्गर जी को, रितु चौरनिया जी को, और यूथ के रजत हार्डी को, निको जोसवाल सेक्रेटरी, और फिर इसमें GFF तीनों ने, प्रोफेशनल फोरम तीनों ने साथ में मिलके, कुमारपाल चोपड़ा और राहुल सांकला जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जो बजट के ऊपर आप लोगों ने ये जो सेमिनार एक किया है जो वर्चुअल, तो मैं उसके लिए बधाई देता हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि हर एक चीज़ बजट के बारे में आम लोगों तक, हर एक महिला को खास करके इसका ध्यान होना चाहिए कि बजट का महत्व क्या है, बजट क्यों है, बजट लोग क्यों इतना, इंडिया में इसकी बजट की वैल्यू है। आप पूरे वर्ल्ड में देखिए तो बजट को कोई होता ही नहीं है बजट, पर इंडिया में एक बजट की एक अलग वैल्यू होती है। उस बजट को लोग ध्यान से सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि हर एक को बजट की बारीकी ध्यान पड़नी चाहिए। जब हम बजट देखते हैं तो उसके बाद में हमें उसके सब आर्टिकल्स को देखने पड़ते हैं, उसके सब नोटिफिकेशन को देखने पड़ते हैं, उसके बाद में जाके जब पता चलता है कि बजट में क्या क्या चेंजेज हुआ है। क्योंकि बजट 1-1.5 घंटे के बजट में पूरी स्पीच में नहीं आता, बट उसके जो बाद में जब पढ़ते हैं नोटिफिकेशन, सॉरी, तब उसमें पता चलता है। मैं एक बार फिर से खास करके जगमोहन सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ पे आए, पधारे, और जो खास इनको जो आप ट्रेन कीजिए, बताइए कि बजट का महत्व क्या है और बजट से लोगों से फायदा क्या होता है। एक बार फिर से मैं शीतल जी आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Uncle. Now I think we have Vijay Uncle with us. Yeah, So I yeah. would request Vijay Uncle to say a few words and just grace his presence. Jai Jinendra, happy evening. How are you all? गुड। All good. Yes. सबसे पहले तो मैं आज के हमारे स्पीकर जो है जगमोहन जी को, इनको विशेष धन्यवाद दूंगा कि आपने ये देखा कि हमारे यहाँ पर महिलाओं को भी लिटरेट करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसके साथ आज यूथ भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आज हमारे चेयरमैन साहब यहाँ पर थे, अभी पृथ्वीराज जी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको संबोधित किया। जीतो लेडीज विंग वो ऑलवेज टेक द इनिशिएटिव, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक नारी अग्रसर नहीं होगी तब तक कार्य नहीं होंगे। तो ऐसे हमारी शीतल जी बहुत जबरदस्त ऐसे कार्य कर रही है। उसके साथ रितु जी चोरडिया, हमारे डायरेक्टर इंचार्ज सोनाली जी दुगर, और बहुत सारे लोग इसके अंदर अच्छे से कार्य कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंदर विशेष तौर के ऊपर आपने यूथ को जोड़ा है। तो एक बहुत अच्छा संगम है जहां पर आने वाला कल और स्थिरता वाला आज, ये दोनों भी साथ है। तो ऐसे हमारे यूथ यहाँ पर रजित जी हार्डी है, निकुंज जी ओसवाल है, और इन दोनों को बीच में प्रोफेशनल फोरम ने बहुत अच्छे तरीके से लिया है। कुमारपाल जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। उसके साथ साथ राहुल जी सांकला भी यहाँ पर है। और बजट का जैसे अभी बताया गया कि रियली बजट नीड्स
एक बहुत अच्छी सोच बनानी पड़ती है। हर साल एक बजट आता है और उस बजट के बाद में बहुत सारे रेफ्लिकेशन उसके होते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत काम करते रहते हैं। तो आज आप उसको फाइनेंशियल लिटरेसी के हिसाब से ले सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेट होने के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से उसके अंदर जमकर बात करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीजों का फर्क आता है। तो मैं आज हमारे जो स्पीकर है जगमोहन जी से एक अनुरोध करूंगा कि जैनियों के जीन्स के अंदर बिजनेस होता है, तो ये जो महिलाएं जो होती है ना, इनको थोड़ा सा उजागर कीजिए। क्योंकि हमारे हमेशा माननीय पंतप्रधान मोदी जी कहते हैं कि 50% हम लोग 5वीं इकोनॉमी स्टेटस तक पहुंच गए, लेकिन अगर हमको फर्स्ट तक पहुंचना है तो हमें इन महिलाओं को उजागर करना होगा। और जब महिलाएं हमारे कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेगी तो हमारे इकोनॉमी फर्स्ट पे लेके जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये आप जरूर कार्य करेंगे, आपके बारे में बहुत सुना हुआ है। यू कैन मोटिवेट लाइक नथिंग। और शीतल जी, विशेष तौर के ऊपर आपको धन्यवाद कि आज जगमोहन जी को आपने यहाँ पर लाया है। मैं सभी को एक बार पुनश्च धन्यवाद देके आपके इस प्रोग्राम की बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Uncle. So now it's time to introduce the speaker of the session. So I request Shri Priyanka Ji Patni, Diginari convener of Tito Ladies Wing, to kindly give the introduction of the speaker, Shri Jagmohan Ji Singh. Yeah, and thank you, Anushri. CA Jagmohan Singh is India's leading cash flow expert, director, and founder of JSC Online Support and Services Private Limited. He holds multiple certification, includes FCA, ISA, MBA, CFP, MCOM, AMFI, and many more. He has an exemplary expertise in the arena of cash flow management and system setups in accounts and finance. He is an ardent author of various books on finance and renowned trainer and leading seminars on workshops on financial freedom with financial control, cash flow management, net worth creations. In the past 24 years, he has developed and implemented many practical financial tools and has worked with more than 15,000 business owners in India and USA on financial controls. He has been associated with various Indian and international universities, offices, and corporate enterprises. We welcome you, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, and thank you for inviting me to give my deliberation on budget. तो आज ना हम बहुत ही सिंपल, कितना बहुत ज्यादा सिंपल शब्दों के अंदर बजट को समझने वाले हैं, अंडरस्टैंड करने वाले हैं। लेकिन अपनी डेलिब्रेशन शुरू करने से पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जीतो लेडीज विंग, जीतो यूथ और एपेक्स से आज विजय भंडारी जी प्रेसिडेंट भी हमारे साथ यहाँ पर प्रेजेंट हैं, और आप सभी मैनेजिंग कमेटी का तहे दिल से धन्यवाद भी है। और मैं आपको एक्नॉलेज भी करना चाहूँगा, ये आपकी जो एसोसिएशन है ना, जिस तरीके से एक माला की तरह मोतियों को पिरोती है और सही इंफॉर्मेशन सभी अपने पार्टिसिपेंट की लाइफ के अंदर पहुंचाती है, और कितना अग्रेसिव और प्रोफेशनल तरीके से आप काम कर रहे हैं। और इसकी तारीफ के क्या कहने, जब गौतम जैन भाई से मेरी बात हो रही थी ना, हम पहले रांची में मिले, फिर मुंबई में थे और दिल्ली में बात हो रही थी, और द वे लाइक ही टोल्ड टू मी कि मैंने कहा डेफिनेटली पक्का जी, मुझे तो आना ही है आज के सेशन के अंदर, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए जो आप मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो, वंस अगेन आई एम सुपर एक्साइटेड। हाउ मेनी ऑफ यू आर नाउ रेडी फॉर दिस powerful session? If you are ready, then please type R for ready in the chat box, क्योंकि ना अब समय आ गया है। आप जरा मोबाइल कर लो साइलेंट, जो भी बातें करनी है रोक लो, ये अब गाड़ी चलने वाली है। और अगले कुछ ही मिनटों के अंदर मैं ना बहुत लंबे चौड़े कोई टेक्निकल जार्गन का इस्तेमाल नहीं करने वाला, और अब आपको समय भी और नहीं मिलने वाला इधर उधर फोकस करने के लिए। तो अब बिना कोई समय वेस्ट किए सीधा हम चलते हैं आज के बजट के सेशन के ऊपर। गॉट इट? आप तैयार हैं? तो मैं भी तैयार हूं। बजट
बजट 2025, व्हाट्स इन इट फॉर यू? अरे इसमें क्या है, हमारे लिए क्या है जगमोहन, ये बताओ। तो सुनो, सबसे पहले ये समझ लो कि बजट 2025 में 1 फरवरी को अनाउंस कर दिया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने, जो कि लेडीज हैं और जीतोस लेडीज के अंदर। और मैंने पता क्या किया है, पूरी तरह से बजट का टच ना इस तरफ ही कन्वर्ट कर दिया है जिसके अंदर लेडीज के लिए और यूथ के लिए क्या ओपन अप होगा वो शेयर करूंगा। तो पहला पॉइंट क्या है, न्यू टैक्स स्लैब। अब ना सबसे बॉटम पे देखो, 24 लाख रुपए से ऊपर अगर इनकम होती है तो 30% टैक्स है। पहले 10 लाख से ऊपर पर ही 30% टैक्स लगता था। तो इतना डिफरेंस क्रिएट कर दिया गया है। और टैक्स के स्लैब को भी 4 के पहाड़े में डाल दिए हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 12, 16, 20, 24। तो हर 4 लाख के पहाड़े पे 5% का टैक्स इंक्रीमेंटल होता चला जा रहा है। यानी कि अगर किसी की 4 लाख रुपए तक की इनकम है तो कोई टैक्स ही नहीं है, 4 से 8 तक 5% टैक्स है। आप कह रहे हो अरे ये कैसे, हमने तो सुना था कि 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन टैक्स स्लैब के अंदर तो ये टैक्स फिर लग गया 5% का। सुनो, बजट के अंदर ये बोला गया है कि जो इनकम टैक्स है ना, इनकम टैक्सेबल नहीं है 4 लाख रुपए तक, लेकिन टैक्स तो लगेगा, लेकिन देना नहीं पड़ेगा 12 लाख रुपए तक की इनकम का। क्या मतलब हुआ, आप अगर सैलरीड क्लास एम्प्लॉई है ना, तो सैलरीड क्लास एम्प्लॉई को 75,000 की डिडक्शन मिलती है। तो यानी कि 12,75,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो कैसे, टैक्स तो बनेगा, लेकिन एक सेक्शन है 87A इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, जिसके तहत जो 60,000 रुपये का टैक्स बना ना, वो एग्जम्प्ट हो गया, माफ हो गया उस सेक्शन की वजह से। तो 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना, और सैलरीड है तो 12,75,000 रुपए तक का। इसको और अगर ध्यान से समझा जाए ना, तो आप मान लीजिए बिजनेस करते हैं और एक सेक्शन होता है जिसके अंदर ना मोटा मोटा टैक्स जमा कराने की गवर्नमेंट छूट देती है, उसको बोलते हैं प्रेजेंटिव टैक्स, यानी कि सेक्शन 44AD। वो कहते हैं अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो आप अगर अपनी सेल का 8% अपना प्रॉफिट शो कर देते हो, तो आपको कोई किताबें मेंटेन नहीं करनी, बुक्स नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, बस सेल करो और कुछ नहीं करना। 8% के बराबर का प्रॉफिट आपको दिखाना है। अगर 8% के बराबर का प्रॉफिट हमारा बनता है, तो यानी कि 1.5 करोड़ रुपए तक की आपकी जो सेल हो रही है ना, तो 1.5 करोड़ का 8% कितना हुआ, 12 लाख रुपए। तो उसके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं है। वाह, और अच्छे से समझते हैं। अगर मान लीजिए आप प्रोफेशनल हो, कंसल्टेंट हो, तो अब प्रोफेशनल लोगों को क्या होता है कि जितनी उनको प्रोफेशनल फीस आती है ना, तो उसका आधा उनको एज ए डिडक्शन मिल जाता है। तो 24 लाख की फीस आई, 12 लाख की डिडक्शन मिल गई, बाकी बचे 12 लाख रुपए। अब 12 लाख पे टैक्स ही नहीं है, यानी कि 24 लाख रुपए तक की अगर आपको कंसल्टेंसी की रिसिप्ट आ रही है, प्रोफेशनल फीस आ रही है, कोई इनकम टैक्स ही नहीं है। यानी कि साल के 2 महीने की प्रोफेशनल फीस आई, कोई टैक्स नहीं है। 1.5 करोड़ की सेल कर दी, टैक्स नहीं है। लाख रुपए महीने सैलरी कमा रहे हैं, कोई टैक्स नहीं है। इसका मतलब है कि बड़ा बदलाव किया है इनकम टैक्स में, नोट कर लो। 87A की रिबेट दी जा रही है, समझो। अब ना ओल्ड रिजीम बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं रही। झगड़ा होता था ना, लड़ाई होती थी, बात होती थी, दिमाग कंफ्यूज होता था कि ओल्ड में जाएं कि न्यू में जाएं, ओल्ड के न्यू, ओल्ड के न्यू। अब ना जिस तरीके से बजट आ गया है, उस हिसाब से 1 अप्रैल 2025 के बाद जो भी आप इनकम अर्न कर रहे हो, उसमें तो न्यू रिजीम में ही जाना है। ओल्ड रिजीम बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं रह गई है, क्योंकि ये सारा का सारा बेनिफिट इन्होंने न्यू रिजीम के अंदर दिया है। और सुनो मेरी बात, जिन लोगों को शेयर से प्रॉफिट हो जाता है ना, शेयर प्रॉफिट हो जाता है, कैपिटल गेन आ जाता है, लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, तो फिर वो 12 लाख वाली छूट नहीं मानी जाएगी ना, ना 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 ना, ना। कैपिटल गेन हटाओ, कैपिटल गेन हटाओ, तो उसमें 12 लाख इंक्लूड नहीं है। ठीक है, सही है ना। यानी कि कैपिटल गेन को छोड़ के बाकी आपकी जो इनकम हो रही है, उसके लिए है ये 12 लाख की छूट। और अगर मान लो 12 लाख रुपए से इनकम बढ़ गई, बढ़ गई कहाँ से, 12 लाख से 500 रुपए से भी बढ़ गई,
क्योंकि देखो 12,05,000 के ऊपर तो 60,075 रुपये टैक्स बन जाएगा। मान लो 500 रुपये इनकम हो जाए मेरी, 12,05,000 रुपये, तो क्या जगमोहन मुझे टैक्स देना पड़ेगा 500 की इनकम के ऊपर भी? नहीं 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 नहीं। गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर मान लो आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर जा रही है तो उस पर टैक्स कैलकुलेट करो। तो टैक्स और इनकम विच एवर इज लेस वो आपको पे करना है। अगर 1 रुपये से या 500 रुपये से इनकम बढ़ गई तो अब आपको 60,000 टैक्स नहीं देना, आपको मात्र 500 रुपये टैक्स देना है। यानी कि अगर आपकी 20,000 की इनकम और बढ़ गई तो भी आपको 20,000 ही टैक्स देना है। समझ गए आप? क्योंकि इसके ऊपर बड़ी चर्चाएं चल रही थी कि जगमोहन यार ये तो 12,01 रुपये होते सारी, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, इनकम और टैक्स विच एवर इज लेस कहाँ बोल दिया? वो बोल दिया हमें सेक्शन 115 बीएसई के अंदर। यहां तक तो ठीक है। मुझे ये बताओ जरा चैट बॉक्स में जो मैं अभी बोल रहा हूं आपको क्लियर तो होता जा रहा है ना? अगर आपको क्लियर होता जा रहा है तो प्लीज टाइप सी फॉर क्लियर। और अगर आपके क्वेश्चन आएंगे ना तो लास्ट में Q&A सेशन है। हाँ, आप टाइप करके कुछ चैट बॉक्स में लिखना चाहो तो अपनी ऑब्जर्वेशन या क्वेश्चन को लिख सकते हो, लेकिन अभी अनम्यूट करके क्वेश्चन लास्ट में ही लेंगे, राइट? और बाकी अपने अपने एक्सप्रेशन देते रहो ना चैट बॉक्स में, ब्यूटीफुल लेडीज एंड द यंग जेंटलमैन एंड एवरीबॉडी। और मेरे प्यारे मित्र जो ओके लिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आज ना जीतो ने मुझे मौका दिया है, उन्होंने कहा जगवंत तू बोल ले, आज तू लिखा ले। और बाकी जो कर रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, अरे रहने दो ना, आज सुन लो, आज सुन लो, बजट को सुन लो, मजा आ जाएगा। और मेरे से इंटरेक्शन करते रहो चैट बॉक्स के अंदर अपने एक्सप्रेशन लिखते लिखते। मैं बड़ी खूबसूरती से कोशिश करूंगा कि आपकी बातों को भी मैं जो चैट बॉक्स में लिखोगे साथ साथ कवर करता चला जाऊंगा, ताकि लास्ट में क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही ना पड़े। एंजॉय करो यार, जिंदगी ना सेलिब्रेशन है दोस्तों। दोस्तों, मित्रों एंड बहनों, माताओं और मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड एवरीवन, क्योंकि ना यारो वर्ड निकल जाता है। मोस्टली मेरे जो पार्टिसिपेंट रहते हैं वो बिजनेस ओनर भी होते हैं और वहाँ पर वो है। तो मैं अपने फुल एक्सप्रेशन में हूँ राइट नाउ। आई एम एक्साइटेड, हाँ जी, आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज फुल एक्सप्रेशन में हूँ। गौतम जैन भाई ने कहा था कि जगमोहन 1 रुपए की भी कमी मत छोड़ना अपनी डिलीवरी के अंदर, तो तूने ना पूरा डिलीवर करना है। तो मैं ना अब अपने उसी पूरे नेचुरल अंदाज में हूं ताकि एक एक पार्टिसिपेंट को समझ में आ जाए ये वाली बात। तो कहीं मैं शब्दों में थोड़ा ऊपर नीचे चला जाऊं तो प्लीज मुझे माफ कर देना छोटा भाई समझ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब देखो यहां पर ना टैक्स सेविंग जरा कैलकुलेट कर ले। बोल तो रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। मेरा बताओ मुझे कितना फायदा हुआ? तो ये लो, फायदा मैंने लिख के दे दिया आपको। क्या लिख के दे दिया? अगर 8 लाख रुपए तक की आपकी इनकम है तो आपको मिल गया 30,000 का फायदा। 9 लाख की इनकम है तो 40,000 का फायदा। 10 लाख की इनकम है तो 50 लाख का फायदा। 11 लाख पे 65,000, 12 लाख पे 80,000, यानी कि नेट नेट इस बार ना 80,000 रुपए का फायदा हुआ है। देखो नई योजना के तहत टैक्स तो बनता है 60,000 रुपए का, लेकिन क्योंकि 87A आ गया तो टैक्स लगेगा कितना? 0। लेकिन मान लो 12.5 लाख हो जाता है ना तो आपको फायदा हुआ 40,000 का। अगर आपकी इनकम 12,70,000 रुपए की है ना, फायदा हुआ 23,000 रुपए का। 13 लाख पे 25,000, 16 लाख पे 50,000, 20 लाख पे 90, 24 लाख पे 1,10,000 और 50 लाख पे भी 1,10,000 का ये फायदा मैंने आपको बताया नया प्रोविजन आने के बाद। चलिए अब इनकम टैक्स रिटर्न की बात कर लें। इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब होता है कि 4 लाख रुपए तक ना आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। जगमोहन तुम तो कह रहे थे 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना। अरे 12 लाख तक टैक्स तो बन रहा है। इसका मतलब रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखना, बड़े लोग गलती खा रहे हैं, मिस कर रहे हैं। 12 लाख टैक्स फ्री किया गया है इसलिए रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर रिटर्न ना फाइल की, अगर आपकी इनकम 5 लाख की है, 7 लाख की है, 9 लाख की है, 10 लाख की है, 11 लाख की है, आप बोलोगे मेरे पे तो टैक्स नहीं लगता, मैं रिटर्न नहीं फाइल कर रही, तो 10,000 रुपए का प्रेम पत्र आ जाएगा पेनल्टी का कि रिटर्न क्यों नहीं फाइल की। 4 लाख से ऊपर है तो सेक्शन 139(1). ओहो, यानी कि जगमोहन रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी। हाँ हाँ करनी पड़ेगी। अच्छा, गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आप ना रिटर्न्स फाइल करो, यानी कि हमें जानकारी दो।
आप जब अपनी जानकारी खुद दोगे ना, यानी कि आप ट्रांसपेरेंट बनोगे, डिस्क्लोज करोगे अपनी इनकम को, तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, सब ऑटोमेटेड चलता रहेगा। लेकिन जब आप हमें जानकारी नहीं दोगे, उन्हीं लोगों को हम पकड़ेंगे। यानी कि जो रिटर्न फाइल करने वाले हैं ना, उनके प्रति गवर्नमेंट काफी जो है वो नरम रुख अपना रही है। और तो और अब उन्होंने कह दिया कि मान लीजिए किसी वजह से आप टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, ठीक है, हो जाती है गलती, नहीं कर पाए, तो पहले 2 साल तक का समय मिलता था कि आप फिर भी रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर हम खुद रिटर्न फाइल करते हैं ना, लेट भी रिटर्न फाइल करते हैं 10,000 की पेनल्टी के बावजूद भी, तो क्या होता है हमारे ऊपर ना पेनल्टी नहीं लगती। कौन सी वाली? कंसीलमेंट ऑफ इनकम वाली। वो 2 साल तक था। अब गवर्नमेंट कहती कोई बात नहीं, 4 साल तक कर लेना। यानी कि 31 मार्च 2025 की जो रिटर्न फाइल करनी है वो 31 जुलाई तक फाइल करनी है। अगर 31 जुलाई तक नहीं करोगे तो 31 दिसंबर तक कर सकते हो 5,000 की पेनल्टी के साथ में। 31 मार्च 2026 तक कर सकते हो 10,000 की पेनल्टी के साथ में। उसके बाद भी आप 4 साल तक रिटर्न फाइल कर सकते हो, सिर्फ उस केस में अगर आपकी कोई टैक्स की लायबिलिटी बनती है। क्योंकि जब आप लेट रिटर्न फाइल करते हो ना, आपका कोई रिफंड बनता है तो वो नहीं मिलेगा, आपको कोई टैक्स कम करना है तो वो नहीं करेंगे। जो 2 से 4 साल किया गया है वो एक्स्ट्रा टैक्स जमा कराने के लिए किया गया है कि अगर आप 1 साल देरी से रिटर्न फाइल करते हो तो जितना टैक्स इंटरेस्ट बना उसका 25% फालतू और देना पड़ेगा। सेकंड ईयर में करते हो तो 50% फालतू देना पड़ेगा। थर्ड ईयर में करते हो तो 60% फालतू देना पड़ेगा। फोर्थ ईयर में करते हो तो 70% फालतू देना पड़ेगा। यानी कि टैक्स बनता था 100 रुपये, आप रिटर्न फाइल करना भूल गए, तो आप क्या करोगे? चौथे साल में जब फाइल करोगे तो 100 रुपये का टैक्स नहीं, 170 रुपये जमा कराओगे गवर्नमेंट को। क्लियर हो गया पॉइंट? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि देखो ऐसा है, हम आपके वहां पर रेड करते हैं तो आपके ऊपर कंसीलमेंट लगेगी। अगर किसी के वहां पर इनकम टैक्स की रेड होती है, सर्च होती है, सर्वे होती है, अगर भारत सरकार पकड़ती है ना, तो टैक्स का रेट कोई 5, 10, 15, 20, 25, 30% नहीं है। टैक्स का रेट 60% है। वो कहलाता है कंसीलमेंट ऑफ इनकम। और कंसीलमेंट के अंदर इनकम स्केपिंग की पेनल्टी लगती है सेक्शन 271(1)(c) के अंदर, जो होती है 100% से लेके 300% तक। यानी कि अगर किसी ने 100 रुपए की टैक्स की चोरी की है तो एक तो उसको 60 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। अब 60 रुपए का भी 3 गुना 180 रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो चौबे गए थे छब्बे बनने, दूबे होके निकले। मतलब 100 रुपए की चोरी की इनकम की आपको 60 रुपए टैक्स जमा कराना पड़ा, और आपको 3 गुना 240 पेनल्टी जमा करानी, कि 300 रुपये जमा कराने पड़े। ये किन लोगों के लिए है? उन लोगों के लिए है जिनका हाथ गवर्नमेंट पकड़ेगी, चोरी पकड़ेगी। आप कहते हो सर चोरी नहीं है, हम खुद कर देंगे। खुद कर देंगे जी, तो खुद कर दोगे तो आपको 4 साल तक का समय देते हैं। देखा कितनी ट्रांसपेरेंट होती चली जा रही है हमारी गवर्नमेंट। पॉइंट क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो लिखो C फॉर क्लियर इन दी चैट बॉक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 घर, कितने? 2 घर। पहले ना एक ही घर अगर आपका है, क्योंकि ये माना जाता है कि एक ह्यूमन बीइंग तो एक ही घर में रहेगा ना, नेचुरल सी बात है। 2 घर किसके होते हैं? 2 घरों में कोई रह भी कैसे सकता है? रात को तो एक ही घर में सोओगे। तो गवर्नमेंट कहती थी देखो, एक घर आपका, अगर आपने एक और घर खरीद लिया तो हम मान लेंगे कि आपके 2 घर हैं, और दूसरा घर चाहे आप किराए पे दो चाहे ना दो, हम मान लेंगे नोशनल इनकम मान लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से। क्योंकि आप अमीर हो ना, 2 2 घर रख सकते हो, तो एक घर में रहते हो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे घर में मान लिया जाएगा कि आपको रेंट मिलता है, उसके ऊपर टैक्स दो। पहले तो टैक्स इकट्ठा करने के ना जाने कितने चक्कर बना रखे थे, लेकिन इस बार के बजट में बोला कोई बात नहीं, आपके पास 2 घर है, नो प्रॉब्लम, दोनों पे कोई आपको रेंट दिखाना नहीं पड़ेगा, डीम्ड रेंट दिखाना नहीं पड़ेगा। पहले कंडीशन हुआ करती थी कि आप रहते हो चेन्नई में, वहां पे आपका घर है, लेकिन नौकरी करने के लिए आए हो दिल्ली में, दिल्ली में भी घर बना लिया, तो उस समय आपको लिखना पड़ता था ऑन अकाउंट ऑफ, बाय रीजन ऑफ, बिकॉज ऑफ मेरी नौकरी, जॉब, एम्प्लॉयमेंट के लिए मुझे ना 2 घर लेने पड़ रहे हैं, तब तब उसको नहीं दिखाना पड़ता था। लेकिन ये वाली कंडीशन अब हटा ली है। कहते कोई दिक्कत नहीं है जी, जहां मर्जी ले लो 2 घर, सेम सिटी में ले लो, यहाँ ले लो, वहां ले लो, भारत सरकार खुश है, इससे रियल एस्टेट को बूस्ट मिलेगा। तो 2 घर के ऊपर कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट क्या हुआ? वुमेन। यहां पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उन्होंने बोला था ना कि 2 करोड़ रुपए तक का हम लेडीज को लोन दे देंगे,
लेडीज एंटरप्रेन्योर 2 करोड़ तक का लोन दे देंगे। लेकिन बीच में ना उन्होंने नीचे लिख दिया है कि वो वुमेन कौन होनी चाहिए, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर होनी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, पहला बिजनेस खोला, फिर दूसरा खोला, फिर तीसरा खोला, फिर खोलते खोलते चले गए ना। फर्स्ट टाइम आप बिजनेस कर रहे हो तो 2 करोड़ तक का लोन आपको गवर्नमेंट दे देगी। और अभी किसके लिए खोला है ये खोला है एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। कोई बात नहीं, चिंता वाली बात नहीं है। तो गवर्नमेंट ने तो उनके लिए ओपन कर ही दिया है, लेकिन ओवरऑल बजट जो महिला और बाल विकास का है वो 26,889 करोड़ का बजट है। महिला एंड बाल विकास जिनके लिए सेशन हो रहा है, तो बहुत कुछ अवेलेबल है जी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो इंडियन एआई मिशन के ऊपर भी अब भारत सरकार ने क्या कर दिया कि एग्रीकल्चर और हेल्थ की एरिया में 2,000 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए हैं। यानी कि एक ना एआई सेंटर फॉर एक्सीलेंस बन रहा है, उसके लिए तो 500 करोड़ रुपए अलग से निकाल के दे दिए हैं, जिसके अंदर एआई की क्लासरूम टीचिंग कराई जाए, असेसमेंट करी जाए, प्रोसेस इंप्रूवमेंट किया जाए और क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये क्लासरूम टीचिंग कराएगा कौन, आप असेसमेंट करेगा कौन, आप लोग करोगे ना। प्रोसेस इंप्रूवमेंट देखो, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर में यही आने वाली है 2,000 करोड़, 500 करोड़ रुपए यहाँ पर। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है ना, जरा यहाँ वहाँ पता करो जीतो के थ्रू कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर पाओगे। सरकार तो खर्च ही रही है ना, 2,500 करोड़ रुपए खर्च ही रही है। तो वहाँ पर आप उस तरह की स्कीम्स के अंदर अपनी कंपनी को, अपनी एम्प्लॉयमेंट को, अपनी कंसल्टेंसी को आप कैसे इस बदलाव का पार्ट बन सकते हो। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और देखो, बच्चों के लिए आईआईटी के अंदर 6,500 और सीटें बन रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है वहाँ पे उनके रहने के लिए, खाने के लिए, किचन के लिए, रूम के लिए, और वहाँ पर वेरियस तरह की फैसिलिटी के लिए 6500 नई सीटें बनाई जा रही हैं। अलग से इसके लिए बजट को एलोकेट कर दिया गया है। अब किताबों की बात करो, देखो ऐसा है, ये वाली जो हमारी गवर्नमेंट है ना, इनको इंडिया से बहुत प्यार है। अर्थशास्त्र से लेके कल शाम तक जो भी भारतीयों ने किताबें लिखी हैं या पुराने समय की जो किताबें हैं, उन किताबों को ना इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है, बहुत जोर दिया जा रहा है। और उसको बोला जा रहा है इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो उसके अंदर आप मान जानते हो, बजट जो है वह ना 10 करोड़ से बढ़ा के 50 करोड़ कर दिया गया है ट्रांसलेट बुक्स करने के लिए। अदरवाइज तो इंडिया वाली जो किताबें अंग्रेजों ने लिखी हुई है और इंडिया वाली की किताबों का आता पता ही नहीं है। कोई मदुरई में तो कोई भोपाल में तो कोई कहाँ पर, कहाँ कहाँ मंदिरों में, या कहाँ जो है बाकी पुराने लाइब्रेरी में धूल खा रही है। उसको पहले तो सही करना, नॉलेज को कोलैट करना चाहिए ना। कौन करेगा? आप करोगे। सरकार आपके साथ में है। 10 से लेके 50 करोड़ रुपए तक का बुक्स का है। मतलब छोटी 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 गहराइयों में से अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना बजट को, बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आप नोट करते जाओ, समझते जाओ। इस बजट को ऐसे मत समझो कि ये महंगा वो सस्ता, ये महंगा वो सस्ता। ये पॉलिटिकल लोगों की बातें मत सुनो कि वो तो कहते हैं बजट गंदा आया, कोई कहता है बजट अच्छा आया। अरे बजट तो बजट होता है। मैं तो चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, मैं तो कैश फ्लो एक्सपर्ट हूँ। मुझे मालूम है कि बजट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। और आप लेडीज को तो मालूम ही है बजट की इंपॉर्टेंस। आप तो माँ हो। जब आपको याद है, आपकी माँ पिताजी की कमाई कम थी, 10,000 रुपये माँ को देते थे, और माँ उस 10,000 में से ना 2,000 रुपये चावल के ड्रम के अंदर रख देती थी, और 8,000 रुपये से पूरा घर का खर्च चलाती थी। और वो जो 2,000 रुपये का कैश रिजर्व है ना, उससे जब बेटी ससुराल से यहाँ पर आई रक्षाबंधन के दिन पे, तो उसको क्या था, उसको सगन दे के तोड़ती थी। उस घर में कोई शादी मेहमान आ जाए तो उसका पूरा इंतजाम करना, नए कपड़ा, वो कहाँ से बनते थे? माँ उसी चावल के ड्रम के अंदर जो रखे हुए 2,000 रुपये बजट करती थी ना। माँ बजट करती थी। माँ को तो सब पता है। माँ करती थी कि रात को अगर दाल सब्जी थोड़ी सी बच भी जाए ना, सुबह हमें कितने स्वादिष्ट परोंठे खिलाती है सुबह सुबह, है ना, ब्रेकफास्ट के अंदर। उससे क्या हुआ, उसके घर का बजट भी नहीं बिगड़ा। जो 8,000 रुपये रखे हुए थे, बच्चों ने सुबह
परोंठे खा लिए, टेस्ट भी चेंज हो गया। कई बार माँ ने क्या करना, बड़ी प्यारी सी रोटी बनानी, उसके ऊपर अचार का टुकड़ा लेके ना, इस बार माँ ने अपने हाथों से पूरे अचार को उस रोटी के ऊपर रगड़ देना और प्यारा सा एक रैप रोल बना के हमें देना। क्योंकि उस दिन सब्जी नहीं थी ना, माँ ने बजट को टेक केयर करना था। माँ तो कर लेती थी, हम भी कर लेते हैं, यानी कि आप भी कर लेते हो, आप भी तो माँ हो, बहन हो, यूथ हो, सब समझ रहे हो। इसका मतलब बजट की इंपॉर्टेंस तो है, तो हमने बजट को उसी एंगल से देखना है जिस एंगल से व्हाट्स इन इट फॉर मी है। आगे बढ़ो। एजुकेशन बजट के अंदर ना कम नहीं, ज्यादा 78,572 रुपीज एलोकेट किए गए हैं जो इस साल में खर्च होने हैं। और ये खर्च होने कहाँ पर हैं, जरा अंदर जाकर देखो। आपकी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, संस्था क्या कर रही है? 50,000 तो नई लैब बन रही हैं सरकारी स्कूलों के अंदर साइंस के एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कि बच्चे ने पानी के अंदर एक गैस डाली और वहां से बुलबुले निकले, तो वो बड़ा क्यूरियोसिटी के साथ में एक्साइटेड हो गया। तो बचपन में ही उसके मन में ना इंटरेस्ट पैदा हो गया, कहाँ पर, दूर कहीं स्कूल के अंदर, और आने वाले टाइम के अंदर वो एक बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। ये कब बनेगा? जब उसके स्कूल में कोई लैब होगी। 50,000 लैब बनने जा रही हैं, यानी कि शिक्षा के विभाग में भी ना, मैं कहूँगा कि बहुत कुछ गलत हो रहा होगा जो हमें अखबारों में सुनने को पता लगता है। लेकिन इंटेंशन देखो ना। तो मैं कहता हूं कि अगर कोई ढंग से 50,000 लैब स्कूल में नहीं बना पाता, तो आपकी कंपनी क्या कर रही है? जब 1 फरवरी 2025 को सीता निर्मला रमन जी ने ये अनाउंस कर दिया कि 50,000 लैब बननी है, तो आप देखो ना ये बजट कब रिलीज होगा, कब सैंक्शन होगा, किसको जाएगा, किस संस्था को जाएगा, आप उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप क्या प्रोडक्ट कर सकते हो। क्या पता आपकी संस्था उसको सब्सिडाइज करे या आपकी कंपनी उसके ऊपर कोई काम करे। अरे समझो तो सही, 50,000 लैब गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। और सुनो, इस बजट के अंदर क्या बोला है, 50 एकदम टॉप की जो टूरिस्ट प्लेस है ना अलग अलग स्टेट्स के अंदर, उसके ऊपर खर्चा होने वाला है। कितना? कितना? 2,541 करोड़ रुपए का बजट तो गवर्नमेंट ने सैंक्शन करके साइड पे कर दिया है। आप भी टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हुए हो ना, मुस्कुरा रहे हो राइट। अब समझो, अगर ये टूरिस्ट स्पॉट जो 50 डेवलप होने हैं, तो वो आपकी कंपनी के थ्रू क्यों नहीं होने, या आपकी कंपनी वहां पर क्यों नहीं है, या आप इस मुहिम के साथ में क्यों नहीं जुड़े हुए जहां पर 2,541 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। आप कह रहे जवान हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि हो जाएगा। शीतल जी कह रहे हैं कि लैब जो है सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए है क्या? हाँ जी, ये स्कूल के बच्चों के लिए है और साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए दी गई है, ताकि बच्चों में एक इंटरेस्ट पैदा हो। अब सुनो, एमएसएमई क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो पहले अगर किसी की 5 करोड़ की सेल होती थी उसको माइक्रो बोलते थे, अब उसकी 10 करोड़ की है ना तो भी उसको माइक्रो बोलेंगे। अरे वाह, क्योंकि बहुत सारे देखो, इतनी तरक्की हो रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़ गया है, आप सेल अच्छी कर रहे हो, तो आपके सर से जो एमएसएमई का सर्टिफिकेट हट जाता था, विद इन 45 दिनों की पेमेंट मिलती है और ना जाने कितने गवर्नमेंट सब्सिडी, बैंक इंटरेस्ट रेट के अंदर फायदा मिलता है, वो लोगों की तरक्की होने की वजह से, सेल बढ़ने की वजह से उनको वो राइट हटता चला जा रहा था। 250 करोड़ रुपए की सेल तो लोग करने लग गए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 500 करोड़ रुपए तक की सेल को भी हम मीडियम मानेंगे, 100 करोड़ को हम स्मॉल मानेंगे और 10 करोड़ को माइक्रो मानेंगे। ये बदलाव आ गया है सेल के ऊपर। और आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस के अंदर, अगर 2.5 करोड़ किया हुआ है, पहले एक था, 25 करोड़ किया है पहले 10 था, 125 करोड़ किया पहले 50 था, यानी कि इतना बड़ा बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट में और टर्नओवर में कर दिया गया है, ताकि आपका एमएसएमई का स्टेटस बना रहे, आपको बेनिफिट मिलते रहे, आप आगे तरक्की करते रहें। आप और तरक्की करो तो सरकार और लिमिट बढ़ा देगी। आपको लगता है कि क्या जगमोहन तुम सरकारी कोई एजेंट बन के आए हो, उनकी वाह वाही कर रहे हो? ना 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 ना, मैं कोई वाह वाही नहीं कर रहा। मेरे को क्या लेना देना किसी सरकार से, हम तो एकदम मस्त बंदे हैं, हमें किसी सरकार से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि ये सेशन जो है वो लेडीज के लिए है, यंगस्टर के लिए है, तो इसलिए मैं वो चुनिंदा पॉइंट निकाल के लेकर आया हूँ जो आपके काम में आए, और जो अच्छे अच्छे पॉइंट हैं मैं उन पॉइंट्स को अच्छा बोल रहा हूँ। सरकार से मेरा कोई वास्ता नहीं, ना रूलिंग से ना अपोजिशन से। चलिए सुनो,
क्योंकि ना एमएसएमई वालों को मुद्रा लोन मिलता है। अब ये क्या होता है मुद्रा लोन? मुद्रा लोन का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी लोन। क्या हुआ? देखो ऐसा है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू हुई थी ना 2015 के अंदर, जिसके अंदर एमएसएमई को सपोर्ट किया जाए, खास तौर पे माइक्रो और स्मॉल को सपोर्ट किया जाए, स्टार्टअप को सपोर्ट किया जाए। उसके लिए लोन देने की प्रथा शुरू की थी, जिसके अंदर क्या था कि 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है, जिसको बढ़ाकर अब 20 लाख रुपए कर दिया है 2025 में, तरुण कैटेगरी के अंदर। अब ये तरुण कैटेगरी क्या होती है? तरुण, वरुण, जतिन, सन्नी, मोनू, ये कौन सी कैटेगरी है अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। लेकिन आप अगर तरुण कैटेगरी में हो, यानी कि ग्रो कर रहे हो, बताता हूँ, कोलेट्रल रिक्वायर्ड नहीं है, आपको 10 लाख रुपए अब 20 लाख रुपए एवं ही मिल जाएंगे, बस एवं ही एवं ही एवं ही एवं ही मिल जाने आपको। बैंक में जाओगे, फॉर्म भरोगे, डिटेल जमा कराओगे, कंपनी के डॉक्यूमेंट लगाओगे, बिना किसी कोलेट्रल के आपको 20 लाख का लोन मिल जाएगा। हालांकि मैं कैश लो कोच हूँ, मैं मना करता हूँ, डेप्ट फ्री कंपनी चलानी है। डेप्ट फ्री और कैश रिच, सरकारों से लोन लेना नहीं है, हमने तो कमा कमा के एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, और हमने तो यहाँ वहाँ पैसे लोगों को देने हैं। ऐसी है कंपनी आपकी, ऐसा मैं गाइड करता हूँ एज ए कैश फ्लो कोच। बट फिर भी सरकार कह रही कोई बात नहीं, शुरुआती आपको दिक्कत आ रही ग्रो करने में, तो ले लो बिना किसी परेशानी के। क्योंकि टारगेट ऑडियंस क्या है, वो किसको देना चाहते हैं मुद्रा लोन? स्मॉल बिजनेस को, शॉपकीपर को, आर्टिस्ट को, फूड वेंडर को, ट्रक ओनर को, सर्विस सेक्टर को, वुमेन एंटरप्रेन्योर को आपको देना चाहते हैं, वो वुमेन एंटरप्रेन्योर को, और एमएसएमई को। अब एमएसएमई में क्या हुआ, लिमिट बढ़ा दी, देखा? अब समझ आ गया? समझ आ गया लिमिट बढ़ाने वाली बात मैंने क्यों बोली? कि ये एमएसएमई होता कौन है? जिसकी सेल 10 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक की है, वो एमएसएमई होगा, प्लस इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है। तो फिर सवाल यहाँ पे क्या हो गया कि ये तीन कैटेगरी कौन सी है? शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु यानी कि छोटा बच्चा, यानी कि अभी जस्ट आपने बिजनेस शुरू किया है, तो 50,000 रुपये तक का आपको स्टार्टअप स्मॉल बिजनेस लोन मिल जाएगा। आप कह रहे थोड़े बड़े हो गए हो, किशोर हो गए हो, तो 50,000 से 5 लाख का। इसका मतलब ये नहीं कि शिशु को लोन दे देंगे, नहीं 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 नहीं, ये ना ड्राफ्टिंग ऐसे करते हैं। इनको ना थोड़ी हिंदी के शब्दों की, जैसे भारत मंडपम, यशोभूमि, ऐसे करके ना भारतीय शब्दों को ये वाली सरकार बहुत इस्तेमाल करती है, और बिल्कुल लाडो पाडो करती है। तो इसलिए शिशु किशोर लोन है, लेकिन सारे 18 साल से बड़े होने चाहिए। और ये बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, अगर अगर आपका बिजनेस शिशु है तो 50,000, बिजनेस थोड़ा सा बड़ा हो गया, किशोर हो गया, तो 5 लाख, और बिजनेस तरुण हो गया, तरुण। अब पता लग गया तरुण कौन है? ये तरुण जो है वो शीला का हस्बैंड नहीं है, तरुण जो है उसकी स्टेज है, जो कि अब एस्टेब्लिश बिजनेस हो गया है, और 20 लाख रुपए की लोन की एलिजिबिलिटी बनती है। क्लियर हो रहा है? अगर क्लियर हो रहा है बताओ तो सही ना, चैट बॉक्स के अंदर लिखो C फॉर क्लियर, अगर क्लियर हो रहा है। दिमाग में कोई पॉइंट आ रहा होगा ना, या मजा आ रहा होगा, या जो समझ आ रहा है, तो चैट बॉक्स में लिखते जाना, ताकि हमारा साथ बना रहे, ताकि आपका भी ये समय अच्छा बीते और मेरा भी अच्छा बीते, और मिलजुल के हम 4 बजे से लेके 5 बजे तक के समय का सदुपयोग कर सकें। राइट, चलिए। अब एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट अगर आप करते हो तो उसके लिए भी सरकार कह रही लोन ले लो, लिमिट बढ़ा दी उसकी। क्या लिमिट बढ़ा दी? उसने ना ये बोला कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको 5 करोड़ नहीं, 10 करोड़ रुपए का पैकिंग क्रेडिट मिल जाएगा। यानी कि एक्सपोर्ट ऑर्डर लेके आओ, दिखाओ कि मेरे को एक्सपोर्ट का ऑर्डर आया है, और फिर बैंक को बोलो ये देख ऑर्डर। बैंक बोलेगा चल ठीक है, बैंक जो है आपकी 10 करोड़ रुपए तक की लिमिट सैंक्शन कर देगा। अब आप उसमें से पैसे निकालो और सीधा सप्लायर की पेमेंट करो, सप्लायर से माल लो, उसको मैन्युफैक्चर करो, बनाओ, तैयार करो, उसको एक्सपोर्ट कर दो। एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट के टाइम पे पैसे आ जाएंगे। यानी कि आपके हाथ में है सिर्फ ऑर्डर, ऑर्डर के बेस पे बैंक ने आपको 10 करोड़ रुपए दे दिए, और क्या चाहिए? तो एक्सप्लोर करो ना, पूरा ग्लोब एक्सप्लोर करो, बढ़िया चीज़ों को एक्सपोर्ट आप कर सकते हो। आप कर सकते हो, मुझे पता है आप बहुत कुछ कर सकते हो, करते क्यों नहीं? बजट वाले फिर याद करा रहे हैं। अगर आपको टर्म लोन की जरूरत पड़ेगी ना, तो आपको 10 करोड़ नहीं, 20 करोड़ रुपए तक की लिमिट कर दी है इस बजट के अंदर। 20 करोड़ तक की लिमिट कर दी है, आप आगे तो बढ़ो, स्टार्टअप हो आप। देखो 2016 से लेके 2025 तक का टाइम खत्म हो गया था ना। अगर कोई नया बिजनेस शुरू करता है 2025 तक कर लिया, नहीं तो नहीं, कहते नहीं 5 साल और कर लो। जो अगले 5 सालों तक स्टार्टअप बिजनेस शुरू करेगा, तो उसको आने वाले 10 सालों के बीच में 3 सालों के अंदर टैक्स ही नहीं लगेगा।
कंडीशन क्या है? टर्नओवर 100 करोड़ तक की है। आपने स्टार्टअप बनाया और आपका 50 करोड़ रुपए आप सेल करने पे पहुंच गए हो, तो 50 करोड़ पे टैक्स कितना लगेगा? बहुत लगेगा। सरकार कह रही कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 सालों के टाइम पीरियड में से कोई भी 3 साल चूज कर लो, चौथा, पांचवा, सातवां, मतलब कभी भी कर लो, शुरू में दे दो, क्योंकि शुरू में लॉस होता है कई बार, कई को शुरू में प्रॉफिट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगे आपके रॉकेट उड़ने शुरू हो गए हैं, तो किसी भी एक साल को चुन लेना, फिर उसके लगातार 3 सालों में कंजेक्यूटिव कट 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 3 सालों के अंदर आपको कोई इनकम टैक्स ही नहीं देना, प्रोवाइडेड कि आपने स्टार्टअप शुरू किया है 2016 के बाद। अगर अभी शुरू नहीं किया तो 5 साल और दे दिए हैं। सोच लो भाई, शार्क टैंक इंडिया तो रोज ही देखते हो रात को, नमिता की बातें भी सुनते हो ना, लेकिन पसंद तो आपको अमन ही है। अमन बहुत शरारती है। तो अमन ने भी तो बोट का बिजनेस खड़ा कर ही दिया था, तो वो लेंस कार्ड वाला बड़ा सियाना है, मोटे से चश्मे लगा के आता है और खुद लेंस कार्ड खोल दिया। उस तरह का कोई आप बड़ा बिजनेस भी खोलने की सोच रहे हो, तो 3 साल तक टैक्स नहीं मिलना, 5 साल की छूट मिल गई है, तो फिर क्या करें? मान लो आप एमएसएमई हो, एमएसएमई के अंदर भी माइक्रो हो, माइक्रो यानी कि आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे की है, ये लो क्रेडिट कार्ड ले लो, आपको फोन आते हैं ना डीएसए से, क्रेडिट कार्ड बना लो, क्रेडिट कार्ड बना लो। अब सरकार ने भी बजट में बोल दिया, ले लो 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड, किसके लिए? माइक्रो एंटरप्राइज के लिए। बस अपने आप को उद्यम के पोर्टल पे जाके रजिस्टर कर दो। वो तेरी मजा आ गया। आप सोच रहे थे ना मैं ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू करती हूँ, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? पति दे नहीं रहे, और यहाँ वहाँ से मिल नहीं रहे, बैंकों के 100 झमेले हैं, मेरा कुछ चक्कर है नहीं, और मेरा जो है सेविंग अकाउंट है ये कुछ भी नहीं है, क्या करूं? बहुत दुखी हूं, परेशान हूं, क्या करूं? काश मेरे पास भी एक 5 लाख की लिमिट का क्रेडिट कार्ड होता। ले लो, कहाँ से? उद्यम पोर्टल पे जाओ, पहले तो अपना उद्यम का रजिस्ट्रेशन करवा लो, एमएसएमई का नंबर करवा लो, और उसके बाद अपने बिजनेस में थोड़ा बहुत काम करना शुरू करो, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दो, 5 लाख का मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली बिजनेस को ग्रो करने के लिए करना, क्योंकि बजट में लेडी सीता निर्मला रमन ने लेडी जीतोस विंग के लिए खास तौर पे 5 लाख की लिमिट का कार्ड निकाल दिया है। एक दो नहीं निकाले, लाखों के हिसाब से बटने हैं ये वाले कार्ड। ले लो, कर लो। फिर कहते हो कि मतलब मेरे को ना मनी अवेलेबल नहीं है, तो मनी तो हो गई, रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। अरे जीतो फेडरेशन इतनी बड़ी आपके पास है, तो रिसोर्स ही रिसोर्स अवेलेबल है, गाइडेंस नहीं है? पूछो तो सही। सब गाइडेंस अवेलेबल है। तो मतलब भर भर के छप छप के पैसे मिल रहे हैं। ये है बजट को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव। सुनो, सरकार कह रही कोई दिक्कत नहीं है, आप टेक्नोलॉजी कंपनी चलाते हो ना, ये पकड़ो, 10,000 करोड़, 10 रुपए नहीं, 10 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ कितने होते हैं? बहुत होते हैं, बहुत सारे होते हैं 10,000 करोड़। वो दे दिए उसने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को, उसको बोलते हैं AIF। आपने देखा ना, ये जो आईपीओ आईपीओ आते हैं उसमें पैसे लगते हैं, तो एएफ लगाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि एआईएफ जो है वो आईपीओ में ही पैसा लगाए, कुछ ना एआईएफ जो है वो गवर्नमेंट बैक्ड भी है। नहीं पता था ना आपको? मैंने बताया अभी आपको। कुछ ऐसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, उसको भारत सरकार ने ना इस बजट में 1 तारीख को लिख के 10,000 करोड़ रुपए दे दिए हैं। वो इन्वेस्ट कर सकते हैं आपकी टेक्नोलॉजी कंपनी में। मजा आ गया ना मजा? लो, ले लो, ले लो, ले लो। 10,000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बटी है। देखो आपकी कंपनी टेक्नोलॉजी कंपनी है, क्योंकि ना टेक्नोलॉजी कंपनियों को बैंक लोन ही नहीं देता। बैंक कहता है कि अच्छा मैं तुम्हें लोन दे देता हूं, एक बात तो बताओ कि तुम्हारी प्लांट एंड मशीनरी कितनी है? कहता सर प्लांट एंड मशीनरी तो कुछ नहीं है, एक लैपटॉप ही है बस। अच्छा, तुम्हारा प्लॉट कितना है? सर प्लॉट तो कोई नहीं, घर के ही कमरे में बैठ के मैंने टेक्नोलॉजी कंपनी बना दी है। कहते क्या करती हो यार तुम, अपने स्टडी रूम के अंदर लैपटॉप लेके बैठे हुए हो और फिर कह रहे हो लोन दे दो? कहाँ से दे दूं? मतलब तुम कोलेटरल किसको रखोगे, अपने सराहने को, गद्दे को, कि अपने ये 50,000 के लैपटॉप को? तुम्हारा कोई लोन नहीं हो सकता। लेकिन ये टेक्नोलॉजी कंपनियां करोड़ों अरबों बिलियंस रुपीस बना रही हैं। ये अमेरिकन, चाइनीज, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। डीप सीक ने कहाँ से कहाँ क्या बना दिया। सारी चीज़ें तो अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी कंपनियों को कोई पूछता ही नहीं था। लेकिन अब इस बजट के अंदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड अवेलेबल है, जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। क्लियर हो रहा है ना आपको? एक बार बताते जाओ। अगर क्लियर हो रहा है तो लिखो C4 क्लियर। अरे लिखो लिखो, पता तो लगे। हाँ, आप कह रहे हो ठीक है जुगोन, क्लियर हो रहा है। ठीक है, साथ में ये भी अपने एक्सप्रेशन भी देते रहो, जो एक्सप्रेशन आपने देने हैं चैट बॉक्स में लिखते रहो। दोनों का ही मन लगा रहेगा, आप टाइप करोगे आपका भी लगा रहेगा, मुझे बताते बताते भी पता लगा रहेगा कि आप सुन रहे हो, आप सुन रहे हो।
प्रिया जी कह रहे हैं बिल्कुल क्लियर हो रहा है जगमोहन भाई, तू लगा रहा है बस अपने काम पे, हम सुन रहे हैं। ठीक है प्रिया जी, योर विश माय कमांड। तो फुटवियर और टॉय, हाँ जी, जूते बनाने वाली फैक्ट्रियां और खिलौने बनाने वाली फैक्ट्रियां इंडिया में बहुत हैं, जहाँ पे बहुत लेबर काम करती है। तो सरकार कह रही है कि हम उनके लिए स्पेशल स्कीम लेके आ रहे हैं जहाँ पे लेबर काम कर रही है। तो देखो, आपके पति की या आपके अड़ोसी पड़ोसी की या आपकी खुद की फुटवेयर या टॉय इंडस्ट्री तो नहीं है, उसके लिए जो है स्कीम, उसके लिए डालो गाटी और वहाँ से उसके बेनिफिट ले लो, जो भी लेबर इंटेंसिव है। क्योंकि कई जगह पे ना पीएफ के बेनिफिट मिल रहे हैं, ईएसआई के बेनिफिट मिल रहे हैं, सब्सिडियाँ मिल रही हैं, और इम्प्लॉयज़ की वेलफेयर की कई तरह की स्कीमें मिल रही हैं, उनकी आयुष्मान की स्कीमें मिल रही हैं। फुटवेयर एंड टॉय वालों, जागो जागो जागो, पैसे ले लो। और ये पैसे किसी और के नहीं है, आपके ही पैसे हैं। ये हम ही से जो इनकम टैक्स जीएसटी कलेक्ट हो रहा है ना, वही पैसे बट रहे हैं। ओके, अब तैयार हो जाओ अगले हफ्ते के लिए। अच्छी खबर आएगी आपके पास, एक इनकम टैक्स का बिल आने वाला है नेक्स्ट वीक में। जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट है ना 1961, देखो कितना पुराना हो गया, इतना पुराना हो गया है कि ये बुजुर्ग हो गया। 1961 से लेके 2025 तक इतनी अमेंडमेंट, इतनी सर्कुलर, जैसे प्रेसिडेंट साहब कह रहे थे ना, समझ ही नहीं आती सर्कुलर प्रेसिडेंट। बजट स्पीच में तो मैडम कुछ बोलती हैं, मतलब अच्छा बोलती हैं, तो मैडम कुछ बोलती हैं, लेकिन बाद में जब उसके सर्कुलर नोटिफिकेशन और ये पढ़ो, फिर समझ में आता है कि मतलब क्या है। यहाँ पर स्यापा ही खत्म, क्या पुराना इनकम टैक्स एक्ट खत्म ही हो जाएगा, 1961 नया बिल आ जाएगा, सिंपल भाषा में लिखा हुआ। पहले उसका नाम दिया जा रहा था डायरेक्ट टैक्स कोड। हमारे बहुत ही पूजनीय परम प्रिय गिरीश आहूजा सर हैं, तो उनका पूरा योगदान है इनकम टैक्स कोड लिखने में। वही आने वाला है, एवरीबडी सुपर एक्साइटेड। अभी तो बिल आएगा, देखो एप्लीकेबल कब होगा, शायद 1 अप्रैल 2027 से हो जाए, 28 से हो जाए, क्योंकि आएगा, चर्चाएं होंगी, विचार होगा, तब पता लगेगा। लेकिन ड्राफ्ट तो मिल जाएगा आपको। नेशनल पेंशन स्कीम याद है ना आपको? नेशनल पेंशन स्कीम गवर्नमेंट लेकर आई थी। तो पहले हम एनपीएस में से पैसे निकालते थे ना, तो टीडीएस कट जाता था। अब गवर्नमेंट कहती कोई बात नहीं। देखो एनपीएस के ऊपर तो सरकार ने ना 29 अगस्त 2024 के बाद ब्याज देना बंद कर दिया है, बंद कर दिया। तो वो कह रहे निकाल लो, निकाल लो उसको। अगर आप निकालोगे तो कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। वैसे होता था कि ये वाला पैसा सिर्फ बच्चों को मिलता था हमारे जाने के बाद, अगर खुद निकालोगे तो टैक्स लगेगा। उसको गवर्नमेंट ने कहा ले लो यार, ले लो ले लो, वापस ले लो, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया। कोई डीडीएस वीडीएस नहीं कट रहा। केवाईसी, अब क्या होता था, जितनी बार बैंक में जाओ, छः छः, हमारे 3 3 4 4 बैंक अकाउंट होते हैं, कभी कोई बैंक अकाउंट सो जाता है 6 महीनों में, कभी कोई सो जाता है। जब बैंक में पैसे निकालने के लिए जाओ, वो बोलते थे सर आपका अकाउंट ना डोरमेंट हो गया है, मैडम आपका अकाउंट डोरमेंट हो गया है। अरे छोड़ो ना, डोरमेंट कराने के लिए फिर वही फोटो चिपकाओ, फिर वही आधार कार्ड की कॉपी, उसके नीचे साइन करो, फिर वही पैन कार्ड की कॉपी, फिर वो लाइनों में खो। मैडम आपको तो ना बैंक आना पड़ेगा, आपको केवाईसी कराना पड़ेगा, आपका री केवाईसी होगा, आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से। पता नहीं क्या करते रहते थे। खत्म, सेंट्रलाइज केवाईसी शुरू कर दिया है। अपना आधार पैन ड्राइविंग लाइसेंस आपने ऊपर चढ़ा दिया, बस वहीं से ही एक सिंगल बैंक में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसके ओटीपी के द्वारा ऑटोमेटिकली केवाईसी हो जाना है। शुक्र है ये खत्म हुआ, क्योंकि मुझे भी अपने फादर को कई बार बैंक में लेके जाना पड़ता था, उनके अकाउंट ही बहुत हैं और पापा पापा होते हैं तो वो चक्कर ही खत्म। ओके राइट। तो अब प्राइस का बेनिफिट देख लो, फायदा हो गया है, फायदा हो गया है, फायदा हो गया है। अगर आप सोच रहे थे ना, आप सोच रहे थे कि यार एक कार ही इंपोर्ट कर लेता हूँ बाहर से, इंपोर्टेड कार लेनी है, तो ले लो, सस्ती हो गई है, कस्टम ड्यूटी कम हो गई इंपोर्टेड कार पे। आप मोटरसाइकिल लेने की सोच रहे थे, ले लो, सस्ती हो गई। इलेक्ट्रॉनिक टॉयज भी सस्ते हो गए हैं, और लाइफ सेविंग ड्रग्स भी सस्ती हो गई हैं। लेकिन 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 बुरी खबर, कुछ तो महंगा हुआ। क्या? बढ़ गए हैं प्राइस। जो आप सोच रहे थे ना जो ब्रैड पिट ने शूज़ पहने थे, मैं वही इंपोर्ट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, महंगे हो गए हैं वो इंपोर्टेड शूज़ इस बजट के बाद। और जो मोमबत्तियाँ एंजेलिना ने लगा रखी थी, वो कैंडल्स आपने भी लगानी है, तो वो भी महंगी हो गई है। और रेडीमेड गारमेंट आज की डेट में सारे के सारे थोड़े थोड़े महंगे हो गए हैं बजट के बाद। और जो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल नहीं आता, जो आपने भी घर में देखने के लिए लगाया हुआ है, टीवी देखने के लिए, जो आपने लिविंग रूम में लगाया है,
और फिर हम अपने ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में भी लगा लेते हैं इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले, वो भी महंगा कर दिया इन्होंने। देखो जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसके ऊपर ये टैक्स लगा देते हैं। और पीवीसी की फ्लेक्स फिल्म हो गई, शीट हो गई, बैनर हो गए, कहते हैं आजकल यही चलते हैं, चलो यहीं से टैक्स इकट्ठा करो, महंगा हो गया। और सोलर कितना चलना शुरू हो गया ना आजकल, जहाँ वहाँ जहाँ हर किसी की छत के ऊपर सोलर है, तो सोलर के जो सेल हैं वो महंगे कर दिए हैं बजट के अंदर। फिर क्या किया, टीडीएस। अब टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी कि बैंकों से जो हमें ब्याज मिलता है ना, तो बैंक टीडीएस काट लेता है। जब हमें सीनियर सिटीजन को ना एक छूट दी गई थी कि 50,000 रुपये तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा, अब 1 लाख तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। पहले जब हम रेंट किसी को पे करते थे ना, तो 1 साल में अगर उसको 2,40,000 रुपये रेंट देते हैं, यानी कि तकरीबन 12,000 रुपये महीना, तो उसका टीडीएस काटना होता था। अब इसकी लिमिट भी बढ़ा के 50,000 महीना कर दी गई है। इसी तरीके से अगर आप देखो, अगर सिक्योरिटीज के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है तो 10,000 तक लिमिट बढ़ा दी जीरो से। सीनियर सिटीजन की 50,000 से 1 लाख की कर दी। बैंकों से जो हमें इंटरेस्ट मिलता था उस पे 40,000 की जगह 50,000 की लिमिट कर दी। और वैसे जो इंटरेस्ट कोई हमें देता है तो 5,000 से 10,000 की लिमिट बढ़ा दी। डिविडेंड की 5 से 10 बढ़ा दी। रेंट का मैंने आपको बता दिया। पॉइंट क्या है यहाँ पे, सरकार एक मैसेज दे रही है कि हम बेनिफिट दे रहे हैं, लिमिट्स बढ़ गई है। मुझे इसमें से जो सबसे अच्छा लगा वो रेंट वाला लगा। क्या, 50,000। देखो आजकल 50,000 से नीचे का जो रेंट है उसके ऊपर भी टीडीएस काटना पड़ जाता था। 12,000 पे क्या होता है, कुछ भी नहीं, हर जगह पे टीडीएस काटो, टीडीएस की रिटर्न फाइल करो। लेकिन वो 12,000 से बढ़ के 50 हो गई है। लेकिन पहले 12 भी नहीं था, पहले क्या था, 2,40,000 तक। उसका भी गलत फायदा लोग करते थे। मान लो किसी के साथ में उन्होंने एग्रीमेंट इस तरह से कर लिया कि वो छोटा छोटा दिखा दिया, 2,40 तक काटा नहीं, उसके बाद एग्रीमेंट को डिसकंटिन्यू कर दिया, फिर वाइफ के नाम पे करा दिया, फिर उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। तो 2,40 के 1 साल के अंदर 2-2, 3-3 एग्रीमेंट बन जाया करते थे। तू डाल डाल में पात पात, पता नहीं क्या लोगों को ना, मतलब कि सरकार ने तंग कर रखा था मैनिपुलेट करने के लिए। ये कोई बात होती है? चलो शुक्र है, गलती मानी सरकार ने। उसने कहा कि 50,000 रुपये तक कोई टीडीएस काटना नहीं है। कहाँ आया ये वाली बात, बजट के अंदर आई है। सुनो, क्रिप्टो करेंसी लिया आपने, बड़ी महंगी हो गई है क्रिप्टो करेंसी। जियो वाले भी लॉन्च कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी, पता है आपको? वो वाली क्रिप्टो करेंसी तो आई थी फ्री की, फिर लाखों में चली गई। अब भारत में भी अपनी क्रिप्टो करेंसी है और जियो भी लेकर आ गया है, और ना जाने किस किस ने ले रखी है। तो पंडित जी कह रहे मैंने तो ली हुई है। तो सुनो, क्रिप्टो करेंसी ना आज के बाद वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या लाएगा, यानी कि अब ये आपका कैपिटल एसेट है। जब आप इसको बेचते हो ना, इसके लिए स्पेशल रेट दे रखा है 115 बीबीएच में। तो जितना प्रॉफिट कमाओगे ना क्रिप्टो करेंसी को बेचने पे, उसके ऊपर सीधा 30% टैक्स लगना है। पहले तो बहुत मौज हो गई, लेकिन अब वो मौज खत्म कर दी थी 2 साल पहले। लेकिन अब उसका नाम भी चेंज कर दिया उन्होंने। उन्होंने बोला कि क्रिप्टो करेंसी का नाम वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन के अंदर में हम डाल रहे हैं, ताकि सारे झगड़े खत्म हो जाएं। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक और आईटी टेक्नोलॉजी जैसी सर्विसेज के बिजनेस के अंदर हो ना, होता क्या था कि जो आपके यार दोस्त एनआरआई बाहर बैठे हैं, कोई अमेरिका में बैठा है, वहां से फोन करता है, ओए इंडिया में ना तू ये कंपनी खोल ले गुड़गांव में, मैं तेरे को बताता हूँ, गाइड करता हूँ। तो सारे तो एनआरआई गाइड कर रहे हैं इंडियन वालों को। तो किसी ने गुड़गांव में, किसी ने चेन्नई में, किसी ने हैदराबाद में, किसी ने वजीरपुर में, किसी ने मनेसर में अपनी इलेक्ट्रॉनिक और आईटी टेक्नोलॉजी की कंपनी खोल दी। सलाह कहाँ से लेते हैं? बाहर से। अच्छा, उसको जब कंसल्टेंसी फीस देनी पड़ती थी ना, अब पूरे के पूरे अमाउंट के ऊपर सेक्शन 195 के हिसाब से 30% टैक्स लग जाता था। कहते बेड़ा ही गर्क है, क्या फायदा भारत में काम करने का, कोई फायदा नहीं है। तो यानी कि बाहर वाले को जो आप कंसल्टेंसी फीस देते थे, इस बजट के अंदर ना क्रांतिकारी परिवर्तन आया है कि आप उसको जो कंसल्टेंसी फीस दोगे अपने एनआरआई फ्रेंड को, तो 100 रुपीज की दोगे ना, उसमें से सिर्फ 25% उसका प्रॉफिट माना जाएगा। आहा, प्रिजम्पटिव हो गया। पहले क्या था, 100% के ऊपर टीडीएस काटना पड़ जाता था, अब 25% ही इनकम है। तो यानी कि नेट इफेक्ट उसके ऊपर ये आया है कि वो भारत में जो कमाएगा उसके ऊपर सिर्फ उसको 10% ही टैक्स पड़ेगा, क्योंकि 25% ही तो टैक्सेबल है। 75% की उसको डिडक्शन मिल गई। कितनी बड़ी बात है, क्या कमाल कर रहे हैं ना आईटी इंडस्ट्री के अंदर। 10,000 करोड़ रुपए का दे रहे, क्योंकि समझ आ गई ना इनको,
सारा खेल ही आईटी का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, चीज़ें डेवलप हो रही हैं। अगर इस तरह के कानूनों में चेंज नहीं करेंगे तो जो बाहर से इंडिया में काम करने वाले लोग वापस भारत में आना चाहते हैं या वहाँ पर सोच भी रहे हैं या वहाँ से कंसल्टेंसी करते हैं, कहते हैं इंडिया के कानून ही फिटे मुँह हैं, जिसकी वजह से इतना टैक्स पड़ जाता है। फिर चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाते हैं, मेरे पास आते हैं, डिस्कस करते हैं। मैं कहता हूँ देखो भाई ऐसा है, पैसे तो लगेंगे यार, 30% टैक्स तो लग जाएगा, क्योंकि तुम एनआरआई हो ना, सेक्शन 195 है, खत्म हो गई, फायदा हो गया। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सी दिस एज ए बेनिफिट? अगर आपको भी लग रहा है ये बेनिफिट है तो प्लीज टाइप बी फॉर बेनिफिट इन द चैट बॉक्स और अपने एक्सप्रेशन देते रहो। इतने शांत होके मत बैठो, इतनी अटेंशन से मत बैठो। आप लेडीज एंड यंगस्टर का ग्रुप हो, थोड़ा चिल करो, थोड़ा रिएक्ट करो, थोड़ा चैट बॉक्स में बताओ। मुझे पता है आपको मजा आ रहा है बजट सुनने में, शायद ऐसा बजट पहली बार ही सुना है आपने, तो कोई बात नहीं, चिल करो यार, समझो, देखो बिजनेस में कहाँ पर बेनिफिट हो रहा है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आप कह रहे हो कि नहीं नहीं जगमोहन, हमें तो बहुत ही हाई लेवल के प्रोटोकॉल मेंटेन करके चलने हैं। करो ना, हाई लेवल के प्रोटोकॉल मेंटेन करो, लेकिन जिंदगी भी तो जीनी है साथ में। तो सुनो, समरी 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 क्या है बजट की ओवरऑल अगर मैं बताऊं, तो ये जो बजट है ना, ये पूरी तरह से फोकस कर रहा है इकोनॉमिक की ग्रोथ के ऊपर, जॉब क्रिएशन के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जिसके अंदर अगर आप देखोगे बड़े बड़े जो हाईलाइट हैं, तो 12 लाख की रिलीफ दे दी इन्होंने, एमएसएमई को क्रेडिट की सपोर्ट दे दी इन्होंने, मुद्रा लोन को 20 लाख रुपए कर दिया, पीएम आवास योजना के अंदर भी ना 10 लाख करोड़ रुपए इन्होंने साइड कर दिए हैं कि बनाओ घर, सबको घर दे दो। एग्रीकल्चर के अंदर भी काफ़ी सारे बेनिफिट दिए गए हैं, और एजुकेशन को एआई ड्रिवन करने के ऊपर तो काम इन्होंने कर ही दिया है। और समय किस चीज़ का आ रहा है? रिन्यूएबल एनर्जी का, यानी कि सोलर एनर्जी की बात हो रही है। अब वो पेट्रोल डीजल की बातें खत्म है, ये फोसिल फ्यूल फुसफुस। अब बात होगी सारी रिन्यूएबल एनर्जी की। हेल्थ केयर स्टार्टअप देखो 5 साल बढ़ा दिया है, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बड़ा मजबूत किया जा रहा है। यानी कि इस बार का जो फिजिकल डेफिसिट है, कब 12% का नेगेटिव हुआ करता था, वो अब थोड़ा कम होके 4.4% रह गया है। और तैयार हो जाओ, आज मेरा भारत महान, मेरा प्यारा भारत, आई लव माई इंडिया। तो ये अभी ना डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग यानी कि विकासशील देश है। इस बजट के अंदर ना संदेश दे दिया गया है कि भारत 2047 के अंदर बन गया विकसित भारत। 1947 में आजाद हुए, 2047 में विकसित हो गए, विकसित भारत, विकसित भारत। थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग मी द अपॉर्चुनिटी टू शेयर। This is what I wanted to share with you on budget. Thank you for your patience listening. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंसाइटफुल सेशन। और बिल्कुल भी बोरिंग बजट सेशन नहीं था ये, बहुत ही फन लर्निंग थी। और आपने बोला कि ऐसा सेशन आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा, एक्चुअली हमने फर्स्ट टाइम देखा और सुना है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट एजेंडा, आई वुड रिक्वेस्ट सुचिक आचलिया, वाइस चेयरमैन जीतो यूथ विंग एपेक्स, टू काइंडली कम अप विद सम क्वेश्चंस। उसके पहले मैं ना एक प्यार आभार जता दूं गौतम जैन जी के प्रति। गौतम जी बहुत बहुत प्यार है, आभार है, धन्यवाद है ये अपॉर्चुनिटी आप प्रोवाइड करने के लिए और जीतो परिवार से मिलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी, आप ग्रेट हो। इतना प्यार आपके अंदर है, वो हल्का सा एक बूंद हमारे अंदर चलक जाता है। थैंक यू। Thank you so much, sir, for your guidance on budget, and thank you, गौतम भैया। हाँ, unmute हो गए भैया आप। थैंक यू सो भैया। मच जगमोहन भाई। आई मतलब हमारे यहाँ जैसे ही कोई बोला कि भाई फाइनेंशियल पे कुछ बोलना है, तो मैं बोला कि फाइनेंशियल को एकदम मिठाई की तरह परोसने वाले सिर्फ जगमोहन भाई हैं। तो बोला बिना सोचे एक ही नाम आया सर, थैंक यू सो मच। और आप इतने काइंडफुल थे कि तुरंत रेडी भी हो गए, और एक नया आयाम मिला सब देखने का कि बजट जैसा बोरिंग चीज सब उबासियां लेते हैं, यहाँ सब आंख फाड़ के देख रहे थे चीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू जगमोहन जी। सर आपने इतने अच्छे से बताया। अभी मैंने कम से कम 15 पॉइंट की लिस्ट लाई थी कि मैं आपसे इसके लिए पूछूंगा, इसके लिए। मैंने सब एक एक करके काटता गया क्योंकि आपने सब कवर कर लिया वो। टू एवरीबडी हु इज ऑनलाइन, आपके कोई क्वेश्चन यू कैन पुट ऑन द चैट बॉक्स सो वी कैन टेक देम अप लाइव। एंड सर एक दो क्वेश्चन जो मेरे अदरवाइज थे जो शायद नहीं हो पाए कवर। एक तो सर हम जैन कम्युनिटी से है, बिजनेसमैन है,
नए बिजनेस में घुसने के लिए हम तो अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। तो सर बिल्कुल। मखाना का बिजनेस चालू कर दें हम अभी? बहुत बढ़िया जी, मखाना का तो जोश है। नीतीश जी इंतजार कर रहे हैं आपका बिहार में उसके लिए। तो उसकी कोई स्कीम क्या एक बार सर ब्रीफ में बता दीजिए, क्योंकि डिटेल स्कीम तो अभी आएगी। अभी उन्होंने हाँ, प्रपोज किया है मखाना की इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, तो उसकी डिटेल गाइडलाइंस आएगी। बट अभी तो वो कह रहे हैं कि मूड बना लो, मन बना लो और आ जाओ। एंड सर आपने एक टीडीएस की भी बात की, आई थिंक टीसीएस में भी कुछ चेंजेस थे जो अपन को फॉरेन रेमिटेंस या उसमें कुछ बेनिफिट्स हुए हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने याद कराया कि अगर आपने एजुकेशन लोन ले लिया और फिर अपने बच्चों को पैसे बाहर भेजे, तो पहले उसके ऊपर भी टीसीएस काट के जमा कराना पड़ता था। सरकार ने कहा छोड़ो ना, लोन लिया है तो पूरा पूरा दे दो, उस पे क्या काटना है, बंद हो गया। दूसरा, 7 लाख रुपए तक अगर आप बाहर भेजते थे तो टीसीएस नहीं करता था। अब 7 लाख को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। जब यूरोप टूर पे जाते हैं ना हम तो कहते कितने का बिल फाड़ना है 7 लाख से नीचे का, अब 10 लाख से नीचे का। सर ये क्वेश्चन अभी का है, वांटेड टू नो अबाउट द प्रोफेशनल कैटेगरी वेयर अप टू 24 लाख देयर वुड बी नो टैक्स, तो थोड़ा उसका एक्सप्लेनेशन और चाहिए था हमें सर। देखिए, प्रोफेशनल जो होते हैं उनको सेक्शन 44A(D)(A) के अंदर एक प्रावधान है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का। यानी कि मान लिया जाएगा कि आपके पास जो इनकम आती है ना, तो हम झगड़ा खत्म करते हैं, उसका आधा खर्चा मान लेते हैं। आप कहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, खर्चों का हिसाब रखोगे, सैलरी, पेट्रोल, डीजल, आप प्रोफेशनल हो, काम पे ध्यान दो, तो आधा खर्चा मान लेते हैं। तो मान लो 24 लाख, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरे को 24 लाख रुपए साल में मिल गए, तो आधा खर्चा हो गया 12 लाख रुपए। अब 12 लाख के ऊपर वैसे ही कोई टैक्स नहीं है, तो जीरो हो गया, इसलिए मैंने 24 लाख बोल दिया। हंड्रेड सर। सर ऑफ कोर्स जैन कम्युनिटी है तो सब गोल्ड एंड सिल्वर वाले हैं, तो उस पे कोई कमेंट्स है या उस पे कोई बजट पे फॉर दैट सेक्टर कुछ स्पेसिफिकली हो तो उस पे आप बता दीजिए। हाँ, गोल्ड को मैंने ना एक अलग से पीपीटी तैयार की थी ज्वेलर्स के लिए, इसलिए शायद यहाँ पर स्किप हो गई है। टैक्स के थोड़े रेट कम हुए हैं उसके ऊपर। गॉट इट सर। तो सर आपने बताया वो तो टेस्ला और हार्ली डेविडसन तो अभी लेनी है अपन को। हाँ, ले लो, सस्ती फॉरेन बाइक से है। तो कम हो गई है महंगे में सर। जो यू हैड सेड दैट द पैनल्स एंड जो रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह है वो सिर्फ ओवरऑल रेडी इन इंडिया, मेक इन इंडिया वाले भी एक्सपेंसिव हो गए या सिर्फ इंपोर्ट करने वाले वो इम्पोर्ट एक्सपेंसिव वाले, है? इम्पोर्ट वाले कस्टम ड्यूटी पे असर आया है, तो इम्पोर्ट वाले। राइट, गॉट इट, गॉट इट। एंड सो सर ये एल आई सी एटीसी जो अपन डिडक्शंस लेते थे टैक्स बेनिफिट्स के लिए 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपीज के, उसका भी कोई फायदा है वो सब में करने का, या अभी अपन स्टॉक मार्केट में ही पैसा डाले? अभी तो स्टॉक मार्केट में ही पैसा डालने का समय है। भारत ग्रो हो रहा है क्योंकि न्यू रिजीम के अंदर इतने सारे बेनिफिट दे दिए हैं कि ओल्ड रिजीम अब बेनिफिशियल रही नहीं। हालांकि हालांकि सुनो, मैं हालांकि अपना तो पक्ष रखूंगा। मेरा पक्ष ये है कि शुक्र है भगवान का, मुझे ना 25 साल हो गए चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस करते हुए। भारत सरकार के एटीसी के चक्कर में ना लोग कम से कम लाख या 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में डाल दिया करते थे। और जब वो रिटायर होते हैं ना, एक्चुअली में ना बचते वही हैं। बाकी तो सारे आईफोन आ गए हैं और कहीं कुछ हो गया या हम बर्बाद हो गए। तो वो पीपीएफ में जो 30, 35, 50 लाख रुपए बच जाते थे ना, जिसका ब्याज भी टैक्सेबल नहीं होता, तो मन से खुशी से आप पीपीएफ के अंदर लाख 1.5 लाख डालते रहो। उसका फायदा कोई नहीं होना टैक्स के अंदर, क्योंकि टैक्स तो वैसे ही 12 लाख तक हो गया है। और आज के बच्चों को बहुत जरूरी मैं बोलना चाहूंगा, सेविंग किया करो, सेविंग किया करो। सेविंग इज गेटिंग। In short, sir, as a tax benefit, investing in those schemes or in those policies is not beneficial, but of course, savings के लिए महत्व से वो तो करनी ही चाहिए अपन को। करेक्ट, राइट। या सर हमारे इसमें जीतो में एक प्रोजेक्ट है सीएफई का, सेंटर फॉर एक्सीलेंस। वी हैव अ प्रोजेक्ट व्हिच we so what we do is we impart the trainings or different types of ग्रेट। skill development to our members or to our participants. तो जो राइट। अभी स्किल डेवलपमेंट बोर्ड जो सीएफई का किया है प्रपोज, उसका जीतो एज अ प्लेटफॉर्म कैसे फायदा उठा सकता है कोई, अगर आप उस पे टिप्पणी हाँ देंगे हाँ तो? हाँ, देखो, वेरी वेरी टेक्निकली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की 3 अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं। वो वाली स्कीम्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है या कंपनीज हैं, अगर आप खुद बिजनेस रन कर रहे हो और वहां पर कोई स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम रन करते हो, तो उधर डायरेक्ट कंपनी को बेनिफिट्स होते हैं।
दूसरा होता है कि मान लीजिए आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो और कोचिंग इंस्टीट्यूट हो और खुद एक मतलब प्राइवेट फॉर मेकिंग प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन और वहां पर स्किल इंडिया करते हो तो वहां पर आपको पैसे मिलते हैं सरकार की तरफ से। तो इन दो लोगों को तो डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है। लेकिन हमारी जो एसोसिएशंस हैं वो तो वैसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो उसमें आपको पता क्या करना चाहिए, आपको कोलैबोरेट करना चाहिए भारत सरकार के साथ में। तो उनको जो अपना फंड डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप उनकी एक्सटेंडेड आर्म कहलाओगे। तो वहां पर आपको फंडिंग मिलेगी लगातार आपके प्रोग्राम्स के लिए। बढ़िया प्रोग्राम बना के उसको सैंक्शन कराओ मिनिस्ट्री से और ओके कराओ। ग्रेट रजत भाई, शीतल आंटी, आप ये आसिफ जी से कम्युनिकेट करवा दीजिए कि अपन सीएफई में कैसे उनसे फायदा ले सकते हैं गवर्नमेंट से। कोलैबोरेशन एंड कराने का वही परमिशन लेना होगा अपने को डब्ल्यूसी से। हाँ, नहीं अगर नहीं, हो आई एम जाए जस्ट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करने में क्या प्रॉब्लम है, तो करना चाहिए, ट्राई करते हैं, बोल रहे हैं। सर, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल किसी का क्वेरी आई है। इफ टोटल इनकम ऑफ 10 lakhs which include short term capital gain of 2 lakhs, should we have to pay short term capital gain? हाँ हाँ बिल्कुल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर वो इनकम का पार्ट बनेगा। वो 12 लाख वाला जो बेनिफिट हम ले रहे थे ना, तो उसमें से हटाओ और टैक्स बेनिफिट मैं कैलकुलेशन की शीट बना के भेज दूंगा। तो उसमें एवरेज के हिसाब से टैक्स जमा कराना है। खैर आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सुचेत जी, आपको पता ही है। उन्हें तो स्पेक्ट्रम में डाल देना होता है, स्पेक्ट्रम में डाल देंगे तो वहां पे इतना हिस्सा वो एग्जाम में डाल देगा, उतने पे वेटेड एवरेज का रेट निकाल देगा। तो आजकल तो हाथ से तो मैं भी कैलकुलेशन नहीं कर रहा जब से स्पेक्ट्रम आ गया है। बट टेक्निकली आंसर सर, यस, टैक्स लगना है उस पर। 12 लाख की या एग्जाम बाहर हो जाएगा। सर, सो और कोई क्वेश्चन किसी के है तो आप वी कैन टेक योर क्वेश्चंस ऑफलाइन डायरेक्टली भी हम ले सकते हैं। आप खुद डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हाँ भैया हाँ चैट बॉक्स पे कुछ क्वेश्चन है, आप देख लीजिए एक बार। वो आई थिंक वी कवर्ड Covered ऑल ऑफ देम, हो गए कवर। हमने सब कवर किए। बट किसी को अगर बॉक्स में लिखने में डिफिकल्टी है, and अगर दे वांट टू स्पीक आउट एंड स्पीक टू सर डायरेक्टली। कैन आई स्पीक समथिंग? यस सर, प्लीज। तो मैं जगमोहन भाई के बारे में थोड़ा सा और बोलता हूँ। जगमोहन भाई, सुचिक भाई, आप ऑलरेडी सीए हो। जगमोहन भाई ने हालांकि सीए प्रोफेशन के लिए खतरनाक आदमी है। इन्होंने कंप्लायंस को, इनकी 100 से ज्यादा की टीम है, और कंप्लायंस को ऑटोमेटेड वे करके इतना आसान कर दिया है। क्योंकि हम लोग के यहाँ बहुत सारे वुमन एंटरप्रेन्योर भी है। सुचिक जी, आप ऑलरेडी सीए हैं, तो इनके यहाँ पूरा सिस्टम रन करता है। और मतलब कई कई जन ना, एवरी फर्स्ट वीक इनके सिस्टम है कि एवरी फर्स्ट वीक आपके बिजनेस का पी&एल इनके फॉर्मेट में, जो रियलिटी में पी&एल होता है, पी&एल वो नहीं जो इनकम टैक्स में दिखाने के लिए होता है, ये इनका एक सिस्टम है। और बहुत ही किफायती दर पे, मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ जगमोहन जी की, आई एम वन ऑफ द बेनिफिशियरी, और हमारे जैसे कई लोग हैं। सो जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कभी आप जाइए इनके, और इनके तो भर भर के फ्री वीडियोस, फ्री टूल्स अवेलेबल है। पूरी टीम, मतलब बिना कोई इनके है नहीं है, इनकी पूरी टीम हम लोग को हेल्प करने के लिए तैयार है। तो इसका फायदा उठाइए। जैसे ऑनलाइन है, मैं ठीक बोल रहा हूँ जगमोहन भाई? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं जी। सो बहुत डायनेमिक टीम है शीतल दुगर जी के नेतृत्व में, एंड रजत इज लाइक माय स्मॉल ब्रदर। एंड प्रियंका ने जैसे ही मेरे को बोला कि एक ऐसा ऐसा करने का मन है, सो तुरंत आपका नाम आया। और यदि संभव हो सके, आपने नंबर ऑलरेडी डाल दिया है, तो कभी भी किसी को कोई भी हेल्प चाहिए तो जगमोहन भाई इज ऑलवेज अवेलेबल। सर धन्यवाद जी, बस वो फोन ना करें, व्हाट्सएप कर दें क्योंकि व्हाट्सएप आपको तो ये का नंबर देना था। एनीवे, आपने अपना दे दिया, सो हाँ वंडरफुल। नहीं कोई बात नहीं, वो व्हाट्सएप डाइवर्ट हो जाएगा, मतलब व्हाट्सएप मिल जाएगा और कॉल डाइवर्ट हो जाएगी। बट आपका बहुत बहुत इसके धन्यवाद। अलावे जगमोहन भाई ने जिंदगी के जितने भी ऊंच नीच देखे हैं और सारे कोर्सेज कर रखे हैं। हम लोगों ने साथ में कई कोर्स किए हैं। मैं मतलब इस बताने के लिए पूरा लिस्ट है। सो ही इज एज ए पर्सन, ही इज ए वंडरफुल पर्सन। मैराथन रनर है, प्योर वेजिटेरियन है, और मैं क्या बोलूं। थैंक यू सो मच। करिए। थैंक यू फॉर योर लव। थैंक यू सर। अगर Gautam सर, uncle, Mohan वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, आई नो। एक अगर अपन अनुश्री, yeah, Suchik, you speak. हेलो।
नहीं नहीं, मैं सर को थोड़ा परेशान कर रहा था, जगमोहन सर को, कि अगर आप आपके थोड़ा जिस्ट में बताएं आप कैसे, हाउ डू यू यू नो ईज द कैश फ्लोज, एंड कैसे आप समझाते हैं। जैसे अपनी 12 लाख में अपनी 5 से 12 लाख, 80 लाख, एक 80,000, 1 लाख की सेविंग्स हो रही है टैक्स की, तो उससे हम आपके कैश फ्लो से कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, अगर आप कुछ जिस्ट में बता पाए तो। देखिए, मैं तो एक मैसेंजर हूँ। मैं तो हम्म, वही बताना चाहूंगा जो भारत सभ्यता में हम्म, अर्थशास्त्र में हमारे चाणक्य जी बता गए हैं और बड़े बड़े विद्वान भारत के बता गए हैं। जो बनिया कम्युनिटी, मारवाड़ी कम्युनिटी, गुजराती कम्युनिटी और जैन कम्युनिटी के अंदर बिजनेस को करने की समझ है, जो हमारे खून में है, ब्लड में है, जिसका मतलब है कि 4 बैंक अकाउंट, यानी कि बिजनेस के अंदर 4 बैंक अकाउंट बनाने हैं, एक पैसा रिसीव करने के लिए, एक कैश रिजर्व क्रिएट करने के लिए, एक खर्चा करने के लिए सैलरी इलेक्ट्रिसिटी, और एक सप्लायर की पेमेंट करने के लिए। तो ये जो 4 बर्तन बनेंगे ना, उससे बिजनेस के कैश फ्लो को मैनेज किया जाएगा। और पर्सनल लाइफ के अंदर छः 6 जार लगाने हैं। 50% से घर का खर्चा चलाओ, 10% से एजुकेशन बढ़ाओ, 10% से मजे करो, जिंदगी के चिल्ल मारो, पूरे प्ले करो, 10% से आप जो है समाज के अंदर कंट्रीब्यूट करो चैरिटी के द्वारा, 10% लॉन्ग टर्म के लिए सेव करना, स्पेंडिंग करने के लिए, बच्चों को पढ़ाई भी करानी है, उनकी शादी भी है, नया घर भी लेना है, और 10% जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में जाने हैं। इसको बोलते हैं कैश फ्लो मॉडल। बस मेरी यही कोशिश रहती है, मैं जिससे भी मिलता हूँ उसको बड़े प्यार से बोलता हूँ कि आप कैश फ्लो के बिजनेस को ऐसे मैनेज कर लो और पर्सनल को वैसे मैनेज कर लो, सो दैट इट इज ऑल अबाउट माँ का आशीर्वाद। जैसे मैंने बताया ना, 10,000 के पैसे आए, 2,000 रुपये चावल के ड्रम में डाले, कुछ इस तरह से हमें एलोकेशन करनी है, ईयर मार्किंग करनी है। जो डे टू डे में घर में बाहर हमने सोचा है, उसी को ही अपनी बिजनेस में और पर्सनल लाइफ में लगाना है। तो मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है जगमोहन सिंह कैश फ्लो कोच। और अब इसी संदेश को लेके मैं पूरे भारत में भ्रमण कर रहा हूँ पर्सनली, ये गाड़ी के ऊपर, जहाँ पर मैं अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा से लेके, राजस्थान से लेके, हरियाणा से लेके, फिर पूरा नीचे घूमते हुए हैदराबाद से लेके नीचे तमिलनाडु और कन्याकुमारी तक 1 महीना मैं रोड पे रहूंगा, ताकि लोगों को कैश फ्लो की जानकारी दे सकूं और सबको बुला सकूं कैश फ्लो समिट 2025 में। तो कैश फ्लो में कुछ नया नहीं बता रहा, मैं कैश फ्लो में जो आपको सुचेत भाई पता है ना, जो शीतल जी को पता है, कहीं ना कहीं हमने आसपास होते हुए देखा है, मैं सारी सृष्टि के लोगों को याद करा रहा हूँ कि उसको इम्प्लीमेंट कर लेना है। उसके कुछ मॉडल बने हुए हैं मेरे जगमोहन सिंह कैश फ्लो कोच के यूट्यूब चैनल के ऊपर। बस इतना सही है जी, बाकी तो वहां देख ही लेंगे सारे। तो सुचेक भाई, मैं ऐड करूंगा। जगमोहन जी अभी पूरे इंडिया भ्रमण में निकलेंगे। शीतल भाभी, हम लोग ना ये फायदा हर जगह उठा सकते हैं, और सर से रिक्वेस्ट है कि हम लोग को, जीतो को काफी आपका सपोर्ट चाहिए, सो दैट कि जो आपकी भाषा हम लोग को समझ में आती है, मैं नहीं बोलता सीए की भाषा है, ये जगमोहन भाई की भाषा है। सो जब भी आप टूर पे निकलेंगे तो आपका चार्ट निकलेगा, तो वी ऑल चैप्टर्स और हर वर्टिकल चाहेगा कि आपसे फायदा उठे हर जगह। थैंक यू, सो दैट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। बहुत आभार है आपके इस प्यार का और इस सहयोग का, बहुत आभार है। बिल्कुल भैया, गौतम भैया, बिल्कुल। हमारे जैसे चीफ सेक्रेटरी रजत भाई के भी सीए है और हमारी भी चीफ सेक्रेटरी सीए है, तो ये दोनों ही बड़ा ख्याल रखेंगे इस बात का कि जगमोहन जी को कहीं जाने नहीं देंगे। एंड हमारे 90 सिटीज में चैप्टर्स है, तो जो भी सिटीज में लिस्ट में आएंगे तो फिर भैया आपके थ्रू, और आई थिंक सुचेक भैया कंटिन्यू करेंगे जगमोहन सिंह जी के साथ में कांटेक्ट, तो उस हिसाब से फिर हर सिटीज में हमारा वो सेशन हो जाएगा जीतो मेंबर्स। डेफिनेटली 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 डेफिनेटली। सो थैंक यू सर, थैंक यू फ्रॉम माय एंड। अभी कोई क्वेश्चंस सर आपने इतना अच्छे से बताया, लोगों की क्वेश्चंस ही नहीं है, तो इट वाज वेरी क्लियर। ऑफ कोर्स मैंने इतनी बजट मीटिंग्स खुद ने देखी है लास्ट 3 दिन में, मैं लिटिगेशन ही करता हूँ, तो दिस इज माय कोर सब्जेक्ट। बट इतना क्लियरली जो आपने बताया, वो मुझे 4-5 मीटिंग्स मैंने किया, उसमें मेरे को समझ में नहीं आया टेक्निकल मीटिंग्स में। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम एवरीवन, एंड अनुश्री, ओवर टू यू। To check and all the participants for all the questions. Questions बहुत thoughtful थे, but answers वही सर के अपने वे में, स्टाइल में एकदम innovative और fun थे. So, moving to the next agenda, I would request Srimati Rituji Chaudia, Chief Secretary, Jito Ladies Wing, to kindly give the vote of thanks.
you so much, Anushri, for giving me this opportunity. Thank you. बहुत छोटा शब्द होगा अगर आज मैं जगमोहन जी के लिए बोलूं. That's very interestingly जो बजट को आपने एक्सप्लेन किया, कीपिंग द ऑडियंस इन माइंड कि उनको कौन सी भाषा समझ में आएगी और उस भाषा का उपयोग करके जो आपने बजट को नरेट किया, मुझे बहुत ही बहुत मजा आया. आई थिंक सारे जितने लोग थे सबने बहुत उसका मजा लिया. एट द सेम टाइम बहुत गेन भी किया. बहुत सारी चीजें हमें समझ में भी आई, सबको समझ में आई, और वो मुझे आई एम श्योर कि वो अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. आप हमारे साथ आपने इतना टाइम गुजारा, अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया, उसके लिए आप जिन शब्दों में थैंक यू कहूँ कम ही होगा, बट स्टिल बहुत आभार, बहुत धन्यवाद. धन्यवाद मैं देती हूँ JYW की टीम को, G2 यूथ विंग को, सबसे ज्यादा धन्यवाद उनको देती हूँ कि रजत जी, अनुश्री जी, गौतम जी, सुचेत जी, आप सब लोगों ने जो इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया. हम लोग क्या हमेशा प्रोग्राम्स करते हैं तो बहुत वेरिड सब्जेक्ट्स नहीं आ पाते बिकॉज उतनी वेरिड ऑडियंस नहीं होती. आज की ऑडियंस बहुत ही अच्छी थी. वेरी गुड मिक्स ऑफ यूथ एंड फीमेल्स. दोनों आज की डेट में भारत सरकार के प्राइम फोकस है कि इनको तो हमें आगे बढ़ाना ही है, यूथ का पावर सामने लाना है और विमेंस को मेन स्ट्रीम में ज्वाइन करवाना है. तो इतना अच्छा एक ब्लेंड आज के प्रोग्राम का था. तो आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बधाइयाँ और बहुत आपका आभार, शुभकामनाएं. अनुश्री, आपने बहुत ही खूबसूरती से ये पूरे प्रोग्राम का संचालन किया, उसके लिए आपको बहुत थैंक यू. एंड हाउ आई कैन फॉरगेट माय टीम, शीतल जी, प्रियंका, सरला जी एंड द एंटायर टीम, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए इतने एफर्ट्स लगाए. आज की डेट में हम लोग आज 200 प्लस क्रॉस किए एंड आई एम श्योर कि जब ये यूट्यूब पर जाएगा ये वीडियो, it will gain approximately 5K views at least in the first hit. That's what I'm aiming for, and I'm really thankful to all of you, the participants. आप लोगों के बगैर ये प्रोग्राम का कोई वैल्यू ही नहीं होता. तो आप सभी ने अपने बिजीएस्ट शेड्यूल्स में से अपना इतना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद. आप सभी को बहुत शुभकामनाएं. आज वसंत पंचमी कल ही गुजरी है, उसकी भी आपको मैं शुभकामनाएं देती हूँ. आने वाला जो साल है वसंत पंचमी से अगले वसंत पंचमी तक का आपका बहुत शुभ हो और आप बहुत अच्छा करें. जो आप चाहें ईश्वर आपको दे. इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. थैंक यू. Thank you very much, sir. Thank you, Gautam Bhaiya and Priyanka. Thank you so much for giving us the opportunity. Thank you. Shweta, please. Bye, everyone. Thank you. Thank you, Shweta. Thank you so much. Nice evening. Fun weekend. Bye.